Yes, students. So first we will discuss about the question answers of yesterday's test. ठीक है? First question. Yes, बच्चे. Yes. Full form of MP means member of parliament. Then next question. What do you mean by Rajya Sabha? Parliament comprises of two houses, Lok and Rajya Sabha. Rajya Sabha is the lower house, which includes 345 members. Chairman is the vice president. That's First, Rajya Sabha, it is the lower house of parliament. ठीक है? Parliament has two houses, and it also included the representative of states. How many members are there? 250. Yes. How many members are there? How many of you have written? 345. No. 545 members are of Lok Sabha, and of Rajya Sabha, how many of you have written? No, beta. Yes, any one more student answer of the same question? And the same question about Rajya Sabha. Define Rajya Sabha. Hanji. Your name, beta? Samiksha, Akul, and Garima. Pari, sorry. Okay, so these students have given the test. Okay, so tell me the meaning of Rajya Sabha. What do you mean by Rajya Sabha? Okay, so you have written 250 members, 245. Then according to that, 12 members are nominated. Okay, in your book 245 is written, so you will do 245 members. Okay, book के according ही करना आपने. ठीक है? Then 12 members are nominated. Lower house है, representatives of states हैं, and they are elected through the members of different legislative assemblies of the state. ठीक है? Yes, yes, 245 members. ठीक है? So now the next question. But write 5 functions of parliament. हाँ जी बेटा, परी. Raise your hand. 12 nominated है इसमें से. ठीक है? And these are elected. Elected कौन कर रहा है इनको? By legislative assemblies of different states. Yes. हाँ जी बेटा. हाँ जी तन्मय. Sit properly. So इसमें हमने फंक्शंस बताने हैं मेन. ठीक है? फर्स्ट फंक्शन हम इसमें क्या लिखेंगे? फर्स्ट फंक्शन to select the national government. To select the national government. Then second function to make new laws. ठीक है? गवर्नमेंट को पहले सिलेक्ट करना. सिलेक्शन ये हमने थॉरली डिस्कस किया हुआ है.
Then to make laws, how it is making laws, it we have discussed. Then third function, to control the government. and how it controls the government, different ways are there. ठीक है. Then first हो गया to select the national government, law making body, control the government. Then fourth function, Supervise the government. to control the government, control and supervise. ये साथ साथ में हो सकते हैं. अगर आप हेडिंग्स बनाओगे तो हेडिंग्स में जैसे आपने 6 पॉइंट्स लिखने हैं तो बिना हेडिंग्स के पॉइंट्स लिखो तो पॉइंट्स ज्यादा हो जाएंगे. ठीक है. अगर आप हेडिंग्स बना के पॉइंट्स लिखोगे तो फिर पर्टिकुलर, जैसे कंट्रोल द गवर्नमेंट, कंट्रोल द गवर्नमेंट में ही आएगा सुपरवाइज द गवर्नमेंट, है ना. उसको उसके क्वेश्चंस हैं, उनको क्रिटिसिज्म भी करती है उनका. ठीक है. कई बार उनको गाइड भी करती है. केम इनटू नॉलेज, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं ऑफ इम्पोर्टेंस, वो उनके नॉलेज में लेके आती है. ठीक है. तो ये डिफरेंट पॉइंट्स है जो उसमें आ सकते हैं. एनी पॉइंट लेफ्ट? To conduct debate sessions. डिस्कशंस ऑन बिफोर लॉ मेकिंग. जब लॉ मेकिंग होती है उससे पहले डिस्कशंस होती हैं. ठीक है. जब वो कंट्रोल गाइड करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, फिर डिस्कशंस होती है. डिस्कशंस का पार्ट, हर एक चीज का पार्ट हो गया. ठीक है. क्रिटिसाइज देयर पॉलिसीज. ठीक है. उनके जो वर्क हैं, जो भी वर्क डन है, क्रिटिसाइज द वर्क डन बाय गवर्नमेंट और द पॉलिसीज. ठीक है. ये सारे इसमें हम पॉइंट्स लिखेंगे. हेडिंग्स ना बनाओ, जस्ट पॉइंट्स लिख दो. और उन जब पॉइंट्स लिखते हो तो पॉइंट्स में कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन कर दो. ठीक है. जैसे आपने 6-7 पॉइंट्स लिखे हैं, उस 6-7 पॉइंट्स में कुछ वर्ड्स हैं जो आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, उन वर्ड्स को आप अंडरलाइन कर दो. हेडिंग्स अगर नहीं बना रहे आप, यहाँ तो हेडिंग्स बना रहे हो तो आपका हेडिंग बना हुआ है. ठीक है. अगर हेडिंग नहीं बनाया है, सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं, तो उन पॉइंट्स में जो आपको लग रहा है कंट्रोल द गवर्नमेंट, उसको अंडरलाइन कर दिया. डिबेट्स, डिस्कशंस, क्वेश्चन आर, इस तरह के जो वर्ड्स आ रहे हैं उनको अंडरलाइन कर दो बीच बीच में. ठीक है. सो नाउ मूविंग टू द टॉपिक. So topic is mineral and power resources. ठीक है. From mineral and power resources we have discussed about mineral resources. We have completed mineral resources. Something is left from that. We have discussed its distribution, its uses, and the need for conservation and how can we conserve the minerals. So why there is need for conserving the minerals? Raise your hand. Why is there need for conservation of minerals? Hanji Arish. They are very important to us. ठीक है. But why we And take thousands of years. wait for your turn? ठीक है. So first हमें need क्यों है कंजर्व करने की? एक तो हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेग्रल पार्ट बन गए हमारी लाइफ का. ठीक है. हमारी लाइफ का एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट बन गया, इंटेग्रल पार्ट बन गया कि हम चाहकर भी अपनी जरूरतों को खत्म नहीं कर सकते. ठीक है. सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो दैट इज, बट दीज रिसोर्सेज दे आर वेरी limited in that its distribution, and also they are not non-renewable. They are also, है ना, they are non-renewable. So that is why there is need to conserve them. They are very important for us. They are very limited. Yes, Lavish, repeat the points. Explain this point. It will take thousands of years to renew these minerals. They are very important for us.
ठीक है, but they are very limited, so that is why there is need to conserve them, so we can use them for our, we can use and save them for our future generations also. And how can we conserve them? What is the various ways through which we can conserve these minerals? Yes. First, we can reduce wastage at various mining sites. Okay. Reduce wastage and recycling these minerals and anything else. वेस्टेज को रिड्यूस करेंगे, रिसाइकल जितना हो सकता है रिसाइकल करेंगे मिनरल्स को, एनीथिंग एल्स, रीयूज, रिसाइकल एंड रीयूज, ठीक है. एनी पॉइंट वी कैन ऐड टू दीज कंजर्वेशन, हाउ कैन वी कंजर्व मिनरल्स? ठीक है, मेनली ये 2 पॉइंट्स है, इसी को आगे हम सब पॉइंट्स में एक्सटेंड कर सकते हैं. क्लियर? ये जैसे हमने ये कुछ हेडिंग्स लिखे हैं, ये क्या है? मेन पॉइंट्स. अगर आपको यही लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं. हेडिंग्स ना बनाएं, इनको एक्सटेंड करके अंडरलाइन कर दें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को. ठीक है, सिट डाउन. So then comes the next, power resources. So among these power resources, we have discussed that these power resources are also very important in our life. ठीक है, we need energy for our every work, in our all day-to-day life, from morning till night, in every activity, we need energy in one way or other way. ठीक है, and there are various sources of energy. We get these energies from various type of sources, and these are sources are of 2 types. ठीक है, 2 तरह के resources हैं. One, they are conventional, and second one, non-conventional. Conventional और non-conventional का एक ओवरऑल मीनिंग मैंने बताया था कि कैसे हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे. कन्वेंशनल जो कि ओल्ड है, नॉन कन्वेंशनल जो कि न्यू है. ठीक है, एक हम ये आइडिया अपने माइंड में रख सकते हैं. तो कन्वेंशनल रिसोर्सेज क्या हैं? दोज विच हैव बीन कॉमन इन यूज फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कि जो काफी टाइम से यूज में आते जा रहे हैं. फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वी आर यूजिंग देम, वी हैव नॉट स्टार्टेड देम नाउ. ठीक है, तो काफी टाइम से हम उनको यूज करते आ रहे हैं. दे आर कन्वेंशनल सोर्सेज. तो इसमें कन्वेंशनल सोर्सेज में है कौन कौन से? फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल्स. ठीक है, फायरवुड और फॉसिल फ्यूल्स, ये इसमें से मेन जो है कन्वेंशनल सोर्सेज है जिससे हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. अब इसमें टेबल बना हुआ है आपकी बुक में जिसमें कि डिफरेंट एडवांटेजेस दिए हुए हैं, वो हम लास्ट में करेंगे जब हम सारे इनको डिस्कस कर लेंगे. सबसे पहले फायरवुड. फायरवुड जैसे कि हम वुड को यूज कर रहे हैं फॉर एनर्जी पर्पसेस. इट इज वाइडली यूज्ड फॉर कुकिंग, हीटिंग इन आवर हाउसेज आल्सो. इन आवर, अभी हम फायरवुड अपने हाउसेज में तो नहीं यूज कर रहे. वी आर यूजिंग इन वन वे और अनदर. और व्हेन वी आर यूजिंग, लकड़ी जला के हम उसको यूज कर रहे हैं अभी. पहले तो बहुत कुकिंग वगैरह में इसका यूज होता था, विलेजेस में आज भी यूज हो रहा है. ठीक है, बट इन आवर हाउसेस वी आर नॉट यूजिंग. मे बी ऑन एनी फेस्टिवल सेलिब्रेशन वी कैन यूज दिस. लोहड़ी पे हम यूज करते हैं ना फायर वुड बना के, ऑन एंड अदरवाइज वी आर नॉट यूजिंग. ठीक है, बट सम प्लेसेस इट इज इन यूज. ठीक है, डेली वो यूज कर रहे हैं, यही उनके एनर्जी का मेन सोर्स है. इट इज वाइडली यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग इन आवर कंट्री. More than 50% of energy used by villagers come from firewood. Mostly in urban areas it is not in use. Urban areas में use नहीं है, लेकिन villages में, rural areas में it is still used. ठीक है, and the people they are dependent on these firewoods. Remains of plants and animals which were buried under the earth for millions of years, they had got converted by the heat and pressure into fossil fuels.
ठीक है, एक तो ये फायरवुड होगी विच वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट, एंड देन जो रिमेन्स थे प्लांट्स के या एनिमल्स के जो कि ब्यूरिड हो गए अंडर द ग्राउंड आफ्टर मिलियंस ऑफ इयर्स, सो दे गेट कन्वर्टेड इनटू yes coal is also example of fossil fuel, ठीक है, such as coal, petroleum and natural gas. तो ये कौन कौन से कन्वर्ट हो गए? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है. सो दीज आर ऑल्सो फॉसिल फ्यूल्स. अब ये सारे कौन से हैं? कन्वेंशनल सोर्सेस, ठीक है. काफी टाइम से हम इनको अभी यूज करते आ रहे हैं. पहले फायरवुड को यूज कर रहे थे, फिर हमने कोल, पेट्रोलियम और फिर इनको नेचुरल गैस को यूज करना स्टार्ट किया. सो दीज रिसोर्सेज, द फॉसिल फ्यूल, these are also the main sources of conventional resources. ये जितने भी कन्वेंशनल है ना, ये सारे नॉन रिन्यूएबल है. लग रहा है कि रिन्यूएबल है? नहीं ना, ये सारे इतनी जल्दी रिन्यू नहीं होते जितनी जल्दी हम इनको यूज कर रहे हैं, ठीक है. जो नॉन कन्वेंशनल है, अभी हम इनका डिफरेंस भी करेंगे, पहले हम कन्वेंशनल को देख लेते हैं. सो दीज कन्वेंशनल सोर्सेज, इनके रिजर्व जो हैं दे आर लिमिटेड, ठीक है. जितने भी हमारे कन्वेंशनल रिसोर्सेज, सभी के जो रिसोर्सेज हैं, रिजर्व्स हैं, वो मिनरल के लिमिटेड हैं, दीज फॉसिल फ्यूल के. एंड द रेट विच ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन इज कंज्यूमिंग देन फॉर ग्रेटर, लेकिन जिस पर रेट पे हम उनको यूज कर रहे हैं, जो हमारी नीड्स इंक्रीज हो रही है, वो नीड्स क्या हमारी ज्यादा इंक्रीज हो रही है, लेकिन उनका जो रिजर्व है वो लिमिटेड है. वो इंक्रीज नहीं हो रहा है कि हमारी नीड्स इंक्रीज हो रही है तो वो रिजर्व भी साथ साथ में इंक्रीज हो रहा है, नहीं, ठीक है. सो they are likely to be exhausted soon. अगर हम इसी तरह से इसको यूज करते जाएंगे तो वो बहुत जल्दी ही क्या हो जाएंगे? exhausted means finished, ठीक है. so these resources are limited. तो ये जो conventional sources हैं ये क्या है? limited हैं. अब जैसे इसकी थोड़ी सी हम ब्रीफ सबके बारे में देख लेते हैं. इंट्रोडक्शन, कोल, पेट्रोलियम एंड देन नेचुरल गैस, ठीक है. अब इसी के साथ एक और कन्वेंशनल सोर्सेज में हाइडल पावर भी है, ठीक है. फॉसिल फ्यूल एंड देन हाइडल पावर आल्सो. दिस इज आल्सो वन ऑफ द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. अब इसमें से और इसके बाद नॉन कन्वेंशनल का पहले मीनिंग हम समझ लेते हैं, ठीक है, फिर हम इसकी आगे डिटेल्स में करते हैं. सो नॉन कन्वेंशनल कौन से हैं? विच सोर्सेज विच नाउ वी हैव started to use to produce energy, जो हमने अभी न्यू सोर्सेज है जिनको हमने स्टार्ट करना यूज किया है, ठीक है. जैसे कि हमने ये फॉसिल फ्यूल जो भी है ये लिमिटेड है, एग्जॉस्ट बहुत जल्दी हो जाएंगे, हमारी नीड्स इंक्रीज हो रही हैं, एनर्जी की जरूरत हमें ज्यादा है लेकिन वो सोर्सेज कम है, तो हम नए नए सोर्सेज को यूज कर रहे हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है. तो इसमें से जैसे कि हम सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इनको यूज कर रहे हैं, ठीक है. सोलर एनर्जी को यूज कर रहे हैं, ये सारे रीन्यूएबल भी हैं. सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, देन टाइडल एनर्जी हो गई, न्यूक्लियर एनर्जी हो गई. टाइड्स आपने किए होंगे पिछली क्लास में. टाइड्स वन ऑफ द मूवमेंट इन ओशन वाटर, ठीक है. तो देन विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोगैस, ठीक है. तो ये डिफरेंट, ये क्या है? ये नॉन कन्वेंशनल, ये न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं एंड दे आर आल्सो, ये क्या थे? लिमिटेड एंड दे आर रिन्यूएबल आल्सो. देन बायोगैस. तो ये डिफरेंट सोर्सेज हैं. अब एक एक करके हम इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं. जैसे सबसे पहले कोल, ठीक है. अब कोल क्या है? लिमिटेड है. हमने ये भी कहा कि मोस्ट कॉमनली यूज है इन आर इंडिया, मोस्ट ऑफ द विलेजेस, इन रूरल एरियाज, ठीक है. abundantly found, और हमारे इंडिया में abundantly found भी है. मीनिंग ऑफ कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल. हाँ जी राघव. हाँ जी तन्मय.
and we are also using these resources for a very long period of time. Now repeat the answer. Hanji. Same conventional resources. If we will continue its use, then it will exhaust one day, because it is taking millions of years to renew. But our needs at present, if we are using, if we still keep in using these all minerals, then they will exhaust soon. So what are these conventional resources? Oh, sorry, conventional power resources. Resources तो है ही ये. कन्वेंशनल वर्ड का मीनिंग, सिर्फ कन्वेंशनल वर्ड का मीनिंग क्या है? हाँ जी, कन्वेंशनल मीनिंग ऑफ कन्वेंशनल वर्ड. यस, conventional who has that resources who has been in use for long period of time. अगर हम resources की नहीं भी बात करें ना, वैसे conventions की बात कर रहे हैं, तो convention मतलब हमारी traditions, कुछ ऐसी चीज जो हम काफी समय से करते आ रहे हैं. ठीक है, जैसे हमारे rituals हैं, ठीक है, rituals हैं, traditions है, तो वो भी हमारी conventions है. ये क्या है? conventional resources कि जो हम काफी टाइम से इनको यूज करते आ रहे हैं, तो वो क्या बन गया? हमारा एक कन्वेंशन बन गया. ठीक है, तो इसलिए आप अपने माइंड में एक ये चीज रख सकते हो कि दीज आर ओल्ड एंड दीज आर न्यू. तो ये सारे क्या है? रिसोर्सेज न्यू. रिसोर्सेज सभी हैं. कौन से रिसोर्सेज हैं? पावर रिसोर्सेज विच जनरेट एनर्जी फॉर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स. कि हमारे डिफरेंट काम को करने के लिए वो हमें एनर्जी देते हैं. यस बेटा. Because our demand is increasing, but they are not increasing. They are very limited. अगर हम इसी स्पीड से उनको यूज करते रहेंगे, then they will exhaust. ठीक है. So the first very power resource, coal, that is in fossil fuel. ठीक है. Power resource, conventional power resource, among fossil fuel, coal. So coal, it is abundantly available in India. ठीक है. We can say abundantly means कि बाकी मिनरल से ज्यादा अवेलेबल. एबंडेंट का मीनिंग होता है ज्यादा. ठीक है, तो ये नहीं है कि वो बहुत ही ज्यादा अवेलेबल है कि जितना मर्जी यूज करते जाएं. वो तो हमने पहले ही बोल दिया कि लिमिटेड है. ठीक है, लेकिन बाकी रिसोर्सेज हम कह सकते हैं कि उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा है. ठीक है. सो मोस्ट अबंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल. सो इट इज एज अ डोमेस्टिक फ्यूल. हम डोमेस्टिक यूज के लिए भी कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज के लिए भी, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज के लिए भी, स्टीम इंजन और जनरेट इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी यूज होता है. ठीक है. सो इलेक्ट्रिसिटी जो कोल से बनती है उसको हम कौन सी एनर्जी बोलते हैं? थर्मल पावर. ठीक है, थर्मल एनर्जी या थर्मल पावर. द कोल विच वी आर यूजिंग टुडे, वो कैसे बना था? इट वाज फॉर्म्ड मिलियंस ऑफ इयर्स अगो. ठीक है, काफी इयर्स पहले बना था. which when giant ferns and swamps got buried. ठीक है, फर्न्स एंड स्वैम्स होता है कि जो कि वेजिटेशन थी उस टाइम पे. ठीक है, डिफरेंट वेजिटेशन होती है जिनकी सीड्स, फ्लावर्स कुछ नहीं होते, तो उनका नाम है फर्न्स एंड स्वैम्स. कि दे गॉट ब्यूरिड अंडर द लेयर्स ऑफ अर्थ. तो वही बाद में क्या बन गए? कोल. ठीक है. सो कोल इज आल्सो देयरफॉर रेफर्ड टू एज buried सनशाइन. ठीक है, कि सनशाइन, सनशाइन क्या है? कि जो सनशाइन से वेजिटेशन वगैरह सारी थी वो सारी बरीड होगी, तो वो बरीड सनशाइन भी इसको बोलते हैं. अब इसके प्रोड्यूसर कि ज्यादातर कोल कहाँ अवेलेबल है? कनाडा, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ, यस, चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस. ठीक है, तो इन कंट्रीज में दीज आर द लीडिंग प्रोड्यूसर. मेन आपने कॉन्टिनेंट वाइज मैंने बोला लार्जेस्ट प्रोड्यूसर याद करने हैं. ठीक है, अब इंडिया के भी आपने कुछ वो हम मैप में करेंगे जो इंडिया के होंगे. अब इसमें भी कोल के आपको एक दो प्रोड्यूसर तो पता ही होने चाहिए, लीडिंग प्रोड्यूसर. ठीक है, एवरी मिनरल के एक दो प्रोड्यूसर, लीडिंग प्रोड्यूसर तो पता होने चाहिए. लार्जेस्ट डिफरेंट हो गया.
हेक मिनरल के लीडिंग प्रोड्यूसर कौन से कंट्रीज है वो भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे इसमें कोल में हम चाइना यूएसए कर सकते हैं, ठीक है, 2 कंट्रीज हम कर सकते हैं, चाइना यूएसए, रशिया कर लो, दीज आर द मेजर कोल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। और जैसे इंडिया में हम बात करें तो इंडिया में कौन से हैं, रानीगंज, झरिया, धनबाद। धनबाद की तो स्टार्टिंग में ही आई थी कि वो धनबाद की एरिया में से अपने फ्रेंड के घर जा रहा था तो वहां पे सब कुछ उसे ब्लैक ब्लैक नजर आया। स्टार्टिंग में एग्जाम्पल था ना इस चैप्टर की जब स्टार्ट हुआ था। देन एंड इसमें से आप क्या कर सकते हो कि झारखंड, कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज मेनली आर देयर इन झारखंड एरिया, ठीक है, ये कर सकते हो। देन नेक्स्ट कम द पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम भी सेकंड फॉसिल फ्यूल है और कन्वेंशनल पावर रिसोर्स है। अब पेट्रोलियम दैट कीप्स योर कार रनिंग, जो भी हमारे व्हीकल हैं उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, पेट्रोल यूज कर रहे हैं, ठीक है। एंड कई बार हम साइकिल फ्रॉम स्क्वीकिंग, अब साइकिल में से भी कई बार जैसे पंचर हो जाता है तो उसके लिए भी कई बार वो यूज करते हैं, ठीक है, ग्रीसिंग के लिए, यस, तो कैसे यूज करते हैं, ठीक है, वो नहीं मुझे पता। सो बोथ बिगेन एज ए थिक ब्लैक लिक्विड। अब ये पेट्रोलियम, इसको हम क्या कह सकते हैं, एक ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, ब्लैक लिक्विड, ठीक है, जो पेट्रोलियम, ब्लैक गोल्ड आप इसमें कर लो कि बाद में ब्लैक गोल्ड ही करना है, तो ब्लैक लिक्विड है जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक गोल्ड, पेट्रोलियम। सो इट इज ऑल्सो ड्रिल्ड फ्रॉम द ऑयल फील्ड, फ्रॉम द लेयर्स ऑफ रॉक्स एंड इन ऑफशोर एंड कोस्टल एरियाज। अब इसको कोस्टल एरियाज में भी हम ड्रिल करते हैं या फिर ऑफशोर, मतलब कोस्टल एरिया से दूर करके भी हम इनको ड्रिलिंग करते हैं। जैसे कि बॉम्बे हाई है, जैसे यहाँ पे इंडिया में अगर हम कहें कि बॉम्बे है तो यहाँ पे आइलैंड्स हैं बॉम्बे हाई, तो वहां से हम क्या करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं इनकी पेट्रोलियम की, ठीक है। बॉम्बे तो पता ही है इधर, ठीक है, तो बॉम्बे यहाँ से ही आइलैंड्स है ऑफशोर, तो ये कौन सा प्लेस हो गया, ऑफशोर। ये कौन से हो गए, कोस्टल एरियाज, ठीक है। तो कोस्टल एरियाज में भी ड्रिलिंग होती है, ऑफशोर एरियाज में भी ड्रिलिंग, यस। यहाँ पे आइलैंड्स है ना छोटे छोटे, तो वो इसी का ही पार्ट है। जैसे एक तो लक्षद्वीप आइलैंड्स को हमने अलग से नाम दिया हुआ है, ये अलग से नहीं है, ये इसी का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये हम मैप वर्क में भी करेंगे सेपरेट, अभी के लिए इतना समझ लो। सो देन दिस इज सेंट टू, अब यहाँ पे क्या होता है, पहले पेट्रोलियम की ड्रिलिंग होती है, कोस्टल एरियाज में भी होती है, ऑफशोर एरियाज में भी होती है। देन इट इज सेंट टू द रिफाइनरीज, जहाँ पे रिफाइन किया जाता है, क्योंकि जब हम ड्रिल करते हैं तो क्रूड ऑयल निकलता है, ठीक है, उस क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है रिफाइनरीज में, और फिर वहां से हम क्या करते हैं, वैरायटी निकालते हैं, उसमें से डीजल अलग किया जाता है, पेट्रोल अलग होता है, कैरोसिन, मतलब क्रूड ऑयल में से बहुत सारी जो डिफरेंट वैरायटीज है वो प्रोड्यूस हो जाती हैं, पेट्रोलियम, डीजल, कैरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक्स, लुब्रिकेंट्स, तो ये सारे क्या हैं, पेट्रोलियम और इट्स डेरिवेटिव्स, ठीक है, जो पेट्रोलियम से निकलते हैं। तो इन सबको हम इकट्ठा क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड, ठीक है। तो दिस ऑल आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड बिकॉज दे आर वेरी वैल्यूएबल। हम इसको गोल्ड क्यों कह रहे हैं, ब्लैक कलर का है क्योंकि बहुत ही वैल्यूएबल है, ठीक है। एक तो क्रूड ऑयल से बहुत सारी हमें डिफरेंट, अब ये क्या, ये भी डिफरेंट एनर्जीज हमारे लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारी व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज, सबके लिए यूजफुल है। तो इसलिए चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, अब इसके लिए कंट्रीज जैसे ईरान, इराक, ये भी आप मेन कंट्रीज कर सकते हो, ठीक है। देन देयर आर आल्सो सऊदी अरेबिया, कतार, और दूसरे जो मेजर प्रोड्यूसिंग है वो है यूएसए, रशिया, ठीक है, वेनेजुएला। ये हमने कॉन्टिनेंट्स में भी कुछ कंट्रीज किए हुए हैं, ठीक है, कुछ तो रेपिटेशन भी हो रही है, उसमें मिनरल्स थे, ठीक है, जैसे जहां पे हमने मिनरल्स किए थे, मिनरल्स में भी सेम कंट्रीज आए थे, उन्हीं कंट्रीज में यहाँ पे पावर रिसोर्सेज भी हमें मिल रहे हैं। तो लीडिंग प्रोड्यूसर जैसे इंडिया में बात करें तो है डिगबोई इन असम, बॉम्बे हाई इन मुंबई, ठीक है, देन डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स, यहाँ पे हमें इन पेट्रोलियम की ड्रिलिंग होती है, ठीक है, एंड देन दे आर सेंट टू रिफाइन। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड आता है हमारा फॉसिल फ्यूल, नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस हमें कहाँ मिलती है, सो दिस नेचुरल गैस इज फाउंड विद द पेट्रोलियम डिपॉजिट्स, जहां पे पेट्रोलियम डिपॉजिट हमें मिलते हैं उसी के साथ ही हमें ये नेचुरल गैस भी मिलती है, ठीक है। सो वी विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन, थैंक यू बेटा।